related to COVID-19, you may call us and ask our medical experts. Two more experts will be joining us virtually, and one of them is already with us in the studios. We'll introduce them to you in a short while from now. You can also log on to DD News' Facebook page and also DD News Live Twitter handle, and you can post your questions there. Rest assured, all your questions asked would be answered. I'm Munmun Bhattacharya, and with me is my colleague Aanchal Gulati Gumbar. शुक्रिया मुनमुन। तो इस शो में जिसे हम डॉक्टर स्पीक बोलते हैं, लगातार जिस तरह से कोविड-19 से जुड़ी अगर आपके मन में कोई भी संशय है, कोई सवाल है, लगातार डॉक्टर्स का पैनल हमारे साथ यहाँ जुड़ता है और आप उनसे पूछ सकते हैं सवाल। और साथ ही साथ लगातार इस मंच के माध्यम से हम आपसे अपील करते हैं, स्टे होम स्टे सेफ, क्योंकि वही एकमात्र उपाय है सोशल डिस्टेंसिंग, जिसके जरिए कोविड-19 को भारत से बाहर खदेड़ने में हर एक भारतीय की भूमिका हो जाती है अहम। जिस तरह से मुनमुन ने कहा कि लगातार हमारे साथ गेस्ट का पैनल जुड़ा हुआ है, मेरे साथ मेरे लेफ्ट साइड पर जुड़ी हुई डॉक्टर रूपाली मलिक, एसोसिएट प्रोफेसर मेडिसिन VMMCC एंड सफदरजंग हॉस्पिटल। डॉक्टर रूपाली, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास शो पर। और हमारे साथ डॉक्टर रविकांत जुड़े हुए हैं, स्काइप पर मौजूद हैं, डायरेक्टर एम्स ऋषिकेश, और डॉक्टर GC खिलानी जुड़े हुए हैं, फॉर्मर हेड ऑफ डिपार्टमेंट पल्मोनरी मेडिसिन एम्स। आप सभी डॉक्टर्स का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम डॉक्टर स्पीक में। Absolutely. So let's get started now. And there's good news that's coming in from the Health Ministry. If I can come to you, Dr. Malik, on this, that the recovery rate, as the Health Ministry says, has been rising progressively. It's now a little above the 25% mark. It was 13% 14 days back, and so that's the kind of progress that India has made. Even if you look at the doubling rate was 3.4 days pre-lockdown, and that has also improved significantly. It is now 11 days. That's the national average, and there are several states doing better than the national average as well. So how do you look at India's trajectory so far in the fight against COVID-19? What do these statistics reveal to you? Yeah, India has done extremely well in its fight against COVID-19. Even if we look at in comparison with the best of the developed countries, the best of the healthcare systems like in the US, we have done it extremely well, extremely well. The government has always put forward its best foot. It is endorsing every possible step to curtail this COVID-19, and we are already successful in whatever we have done till now. We have improved our doubling time tremendously from 3.5 days to more than 11 as of now as a national average, and just you now mentioned that there are many places which are doing even better than the national average. So we are at a very, very good pace in this fight against COVID-19, and this is not only the government's part but also the people's part. It is a people's war against COVID-19. So even the society, its behavior overall has changed. People are now aware, they know what they are supposed to do, and they are also doing their part very well. So the government as well as the society as a whole is fighting against the COVID-19 to its best. और साथ ही डॉक्टर रूपाली, जिस तरह से लगातार हम इस बारे में भी कई बार सुनते हैं, समझते हैं कि कहीं ना कहीं वी ऑल आर करियर्स, क्योंकि हम लोग बाहर हैं, बच्चे जो हैं वो हमारे घर पर हैं, और ये जो सिम्टम्स होते हैं वो शो नहीं होते। तो इसके लिए एहतियातन अगर हम देखें तो हम क्या कर सकते हैं? बिकॉज वी आर ऑल पार्ट ऑफ एसेंशियल सर्विसेज, और हम बाहर निकलते ही हैं और हमें काम करना ही है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि मैं खुद एक हेल्थ प्रोफेशनल हूँ, एवरी डे में आई हैव टू स्टेप आउट ऑफ माई हाउस, आई हैव टू गो टू दी हॉस्पिटल। सो व्हाट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे जरूरी ये है कि जब भी आप घर से बाहर से वापस आते हैं, आपको आते ही सबसे पहले अपने हाथ धोने हैं। हैंड वॉशिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वे विच कैन हेल्प अस प्रिवेंट दिस इन्फेक्शन। 55% of prevention is done by simply hand washing. So आधे से ज्यादा प्रिवेंशन जो आप इसके अगेंस्ट कर सकते हैं वो केवल हैंड वॉशिंग के द्वारा की जा सकती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आप करेंगे, आप जब भी अपने घर के बाहर से घर वापस आते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है हाथ धोना। उसके बाद आपको अपने कपड़े बदलने हैं, अगर पॉसिबल है तो नहा लेना है। अगर आप पॉसिबल है तो आप नहा लें, कपड़े बदलें, कपड़ों को धोएं, उनको धूप में सुखाएं, ये बहुत जरूरी है। रिपीटेडली वी हैव बीन टेलिंग दिस ऑन दिस वेरी प्लेटफॉर्म इटसेल्फ दैट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वे ऑफ फाइटिंग बैक दिस इन्फेक्शन और प्रिवेंटिंग इट इज टू स्टे हाइजीनिकली। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम साफ सुथरे, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें। तो स्वच्छता ही सबसे इम्पोर्टेंट माध्यम है हमारे लिए इस बीमारी से लड़ने का। Absolutely. Dr. Malik, there are questions that have already started coming in on social media. So let's start taking up those questions. I'll come to you, Dr. Ravikant. One question on social media that has come in is how much time the human body takes to create antibodies against
the COVID-19 virus. Once infected by the same, as antibodies-based testing will rely on the formation of antibodies only. And perhaps the person who's asking the question has taken a cue from what the Health Ministry said yesterday, that antibodies creation does take time, on a question that was asked on rapid testing diagnostic kits. So any answer to this, Dr. Ravikant, that you would like to give us? देखिए, अगर हम इसका पहले इंक्यूबेशन पीरियड पकड़ें, इसका इंक्यूबेशन पीरियड 14 दिन से लेकर 28 दिन तक है. सो फ्रॉम 14 डेज टू 28 डेज इज द इंक्यूबेशन पीरियड. अगर आज इन्फेक्शन हो जाए तो मिनिमम एंटीबॉडीज के पॉजिटिव होने के लिए जो टाइम चाहिए इज 7 to 10 डेज. तो मिनिमम 7 डेज जरूर चाहिए, बट इट कैन बी मोर डिपेंडिंग ऑन इंडिविजुअल इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स. और उससे पहले ये टेस्ट पॉजिटिव नहीं. जी, एक और सवाल आया है, अगर मैं पूछूं आपसे प्रोफेसर खिलनानी, वो ये है कि प्लीज क्लैरिफाई दैट अ पॉजिटिव कोरोना पेशेंट who is asymptomatic, by which method the person spreads the disease to others. So the question is कि अगर हम asymptomatic हैं लेकिन पॉजिटिव हैं तो किस तरीके से आगे इन्फेक्शन ट्रांसमिट होगा? नहीं, जो ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन होता है उसमें कोई फर्क नहीं होता. जो हम सब लोग जानते हैं कि दो तरह से होता है. एक तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से, खांसने से, स्नीज करने से, जोर से बोलने में, बात करने में जो ड्रॉपलेट्स जाते हैं, जो थैंकफुली 1 फुट से ज्यादा नहीं जाते, 1 मीटर से ज्यादा नहीं जाते हैं. दूसरा ये कि एयरबॉर्न ट्रांसमिशन का भी एविडेंस है. उसके अलावा जो फोमाइड्स, मतलब जैसे कपड़ा है, टेबल है, कुर्सी है, कार्डबोर्ड बॉक्सेस है, इनसे ट्रांसमिशन का मेथड सेम ही होता है. सिर्फ इसका पिक्यूलियरिटी यही है कि मरीज को पता नहीं होता कि उसको कोरोना है, क्योंकि उसको न बुखार होता है न खांसी होती है. लेकिन यूजुअली अल्टीमेटली 1-2 दिन बाद ये लक्षण सामने आ जाते हैं. जी, डॉक्टर रविकांत, जिस तरह से लगातार हम सुन पा रहे हैं प्लाज्मा थेरेपी को लेकर बहुत ही थ्योरी सामने आई है, बहुत सी बातें सामने आई. अगर एक क्लैरिफिकेशन के हिसाब से देखिए, हमें भी एक दर्शक ने सवाल भेजा है कि आखिर ये प्लाज्मा थेरेपी है क्या, और अगर इस थेरेपी के जरिए काम किया जाता है तो कोविड-19 के लिए ये कितनी कारगर साबित हो सकती है भविष्य में? देखिए, पहली बात यह कि प्लाज्मा थेरेपी आज की डेट में एस्टैब्लिश्ड अप्रूव्ड थेरेपी नहीं. ये एक एक्सपेरिमेंटल थेरेपी है जिसमें अगर हम किसी दूसरे का प्लाज्मा लें जो इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन ना करे, कि जहां पे हम किसी दूसरे को दें वो नुकसान कर दे, और जिससे लिया गया है उसका एंटीबॉडी टाइटर काफी हाई हो, ना कि बिल्कुल जीरो. इन कई सारे कॉम्बिनेशन के साथ में जब हम किसी दूसरे में इंजेक्ट करें तो क्या वो वायरस को मार पाएगा? तो यह भी एक्सपेरिमेंटल थेरेपी है. इस पे बहुत ज्यादा फोरकास्ट करना संभव नहीं है. हमारे देश में भी बहुत जगह ट्रायल चल रहा है, विदेश में भी ट्रायल चल रहा है, बट स्टिल इट इज एक्सपेरिमेंटल थेरेपी. इट इज नॉट a FDA approved therapy. Right. Professor Khilnani, another question that has come in, and that's a question that is a frequently asked question, because very often on this show and on other shows we tend to hear this question, and that is that what are the risks associated with fruits and vegetables, how to clean or disinfect them, especially onion, cabbages, grapes, etc. How would you respond to that? नहीं, वो जो भी नॉन लिविंग चीज आपके घर में आती है, आप उसको शक की निगाह से देखें. उसमें उसके ऊपर अगर वायरस किसी ने खांसा है मरीज ने, तो उस पे वायरस उस पे जिंदा रहता है. वो जिंदा कितने घंटे रहता है? कॉपर पे 4 घंटे रहता है, सब्जियों पे हो सकता है 24 घंटे रहे, और जो प्लास्टिक पे 3 से 4 दिन तक रहता है. तो जो भी सामान आपके घर में आता है, सब्जियों को बहुत अच्छी तरह धोएं. अच्छी तरह धोने के बाद जो है ना, कच्ची सब्जियां का सेवन ना करें तो अच्छा है. बाकी तो सब्जियां पकी जाती हैं, लेकिन उनको हैंडल करने के बाद, अच्छे से धोने के बाद अपने हाथ जरूर साफ कर लें. ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है. जो हैंड वॉशिंग की बात हम बार बार करते हैं कि कोई भी चीज आप छूने के बाद अच्छे से हाथ साफ कर लें, सैनिटाइजर से करें या साबुन से करें. और कोई चिंता की बात जी. और डॉक्टर व्यापारी, जिस तरह से लगातार लोगों के ये सवाल भी आते हैं हमारे साथ, और कई बार लोग कॉल्स पर भी ये सवाल पूछते हैं कि हम सब्जी लेने के लिए बाहर गए हैं और हमने दूध लेने के लिए हम बाहर गए, एसेंशियल चीज़ें जो डेली नीड की हैं, जहां पर हॉटस्पॉट्स नहीं है, लोग खुद बाहर जाकर खरीद सकते हैं, तो वहां पर किस तरह की एहतियात बरतनी चाहिए कि घर आते हैं वो, और वो लोग तो घर पर ही हैं और कहीं ना कहीं उनको तो बाहर जाना है सामान लेने के लिए?
जी बिल्कुल। एक तो जब भी आप घर से बाहर निकलेंगे, अब मैंडेटरी है कि आप सबको फेस मास्क लगाना है, और ना केवल आपको, आप ये भी इंश्योर करें जो फ्रूट वेंडर है या वेजिटेबल वेंडर है उसने भी फेस मास्क लगाया हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि फेस मास्क जो है वो आपको प्रिवेंट करेगा कि जो अगर आप जो वेंडर है अगर उसको एसिम्प्टोमेटिक कैरियर भी है, इफ इवन इफ ही कफ्स और स्नीजेस, तो जो ऑर्गेनिजम्स हैं ड्रॉपलेट के फॉर्म में आके सब्जियों पे फ्रूट्स पे गिर सकते हैं। तो अगर उसने फेस मास्क लगाया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यू शुड ऑलवेज मेक श्योर कि जो भी सब्जी वाला है, फ्रूट वाला है, या जो भी शॉपकीपर है या मदर डेयरी बूथ पे जो भी काम कर रहा है, वो बंदा हमेशा मास्क लगा के रखे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितने भी वेंडर्स हैं दे शुड ऑल बी वेयरिंग मास्क। अगर पॉसिबल है दे शुड ऑलवेज बी वेयरिंग ग्लव्स एज वेल। और आप भी जब भी बाहर जाते हैं आपको मास्क लगा के जाना है। उसके बाद जब भी आप सब्जी फ्रूट जो भी कुछ सामान लेके वापस आए, जिस भी पॉलिथीन में आप लेके आते हैं, आप आउटसाइड जो भी पॉलिथीन है उसको आप पहले ही डिस्कार्ड कर दें घर में घुसने से पहले। जो भी आप सामान लेके आते हैं उसको रनिंग वाटर में वॉश करना है प्रेफरेबली। जो भी आप फ्रूट्स लेके आते हैं, वेजिटेबल्स लेके आते हैं, उनको रनिंग वाटर में अच्छे से साफ करें, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। चाहे तो उसमें नमक डाल सकते हैं, या फिर कुछ लोग बोलते हैं आप मीठा सोडा भी डाल सकते हैं। मीठा सोडा या नमक डाल के आप रनिंग वाटर में वॉश करें और कुछ देर के लिए नमक डाल के पानी में रख सकते हैं। उसके बाद कुछ देर के लिए फॉर अ डे और टू अगर पॉसिबल है तो बाहर से आई चीजों को आप साइड में रख दीजिए। जैसे दूध है, दूध को रखने की जरूरत नहीं है। दूध में आपने बाहर से पॉलिथीन धोया, उसको बॉईल किया, तो बॉईल करने के बाद इट इज एब्सोल्युटली सेफ। क्योंकि 60 डिग्री एंड अबव पे अगर आप 30 मिनट्स के लिए बॉईल करते हैं तो कोविड-19 जो है, ये जो कोरोना वायरस है, ये यूजुअली डाई आउट हो जाता है। तो अगर आपने दूध को बॉईल किया तो उसके बाद उससे डरने की जरूरत नहीं है। जो खाना आप कुक करके खा रहे हैं, जो बॉईल करके खा रहे हैं, उस चीज से आपको डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी प्रॉपर्ली कुक हो चुका है। बट बाकी जो चीजें अगर आपको उसमें डाउट लगता है तो आप अच्छे से धोने के बाद उनको 24 घंटे के लिए लगभग आप उनको एक सेपरेट एरिया में रख दीजिए, एंड उसके बाद ही यू कैन कंज्यूम देम। वो एक और एडिशनल सेफ्टी मेजर है अदर देन वॉशिंग दी fruits and the vegetables. Absolutely. So those are the safety measures that one should take before consuming fruits and vegetables that one brings home. And there's a caller who's joined us now. Subodh Bansal हमारे साथ गुवाहाटी से जुड़ रहे हैं। जी सुबोध, पूछिए अपना सवाल। ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो हाथ धोने का जो बताते हैं वो तो ठीक है सर, लेकिन क्या है कि आप लोग वो टैप को धोने का नहीं बताते हैं, उसमें साबुन लगा के धोने का। जी, आप कह रहे हैं कि जिस टैप से पानी आता है उसको धोने का नहीं बताया जा रहा है, ये बोल रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। Okay, would you like to respond to that, Dr. Ravikant? देखिए, हम लोग को जो आदत है ऑपरेशन थिएटर में, वो सब के सब या तो सेंसर बेस्ड होते हैं या नी या फुट ऑपरेटेड होते हैं। लेकिन हम लोग के जो रूटीन सब जगहों के यहाँ टैप लगे हुए हैं, ये सेंसर बेस्ड बहुत कम जगह लगे हुए हैं, अधिकतर में वो भी लगे हुए हैं। इसको इस फील्ड पे हमें टाइम को याद करते हुए कि कितने टाइम वायरस रह सकता है, इसको भी उसी तरह से साबुन के साथ में धोना चाहिए जैसे कि आप अपने हाथ को धोते हैं। जी जी। और हमारे साथ दूसरे कॉलर भी जुड़े हुए हैं हरियाणा से, ओम प्रकाश चौटाला जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश जी, पूछिए अपना सवाल। मैं नमस्कार जी, धन्यवाद, आभार करता हूँ जी। चलो, आज तक हमने जो भी किया प्रयास के रख किया, संभावना समझ के किया और अच्छा ही हुआ जितना भी हमें प्रोग्रेस मिली। तो मैं अब ये बात पूछना चाहता हूँ, जैसे H1N1 का वायरस था वो हमने अच्छी प्रकार कंट्रोल भी कर लिया था और उसका कंट्रोल करना भी आसान है, यानी प्रिकॉशन ही है जैसे इसकी प्रिकॉशन है। तो क्या इसमें एक बात मैं और जोड़ना चाहता हूँ, मैं भी एलोपैथी का तो प्रशंसक हूँ, पेशे से मैं किसान हूँ। एक बात मैं और जोड़ना चाहता हूँ, सोशल डिस्टेंसिंग में यदि हम सरसों के तेल के नेशे लेते हैं, यानी तो वो एक मतलब बड़ा अच्छा काम करता है। यानी कोई भी वायरस है, जैसे वो देखा गया कि टीबी के विषाणु है या H1N1 के विषाणु है या आम फ्लू के विषाणु है, वो जल्दी से प्रवेश नहीं करते। तो क्या इसमें भी ये काम करने की संभावना है? और दूसरा ये कि इसका और अंतर H1N1 इसमें कितना एक अंतर है, कृपया इस पर प्रकाश डालें। आपका हृदय से आभार। और एक बात और कहना चाहता हूँ। हेलो जी जी, पूछिए, बोलिए। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, H1N1 में देखा गया है कि जितना हम धूल से बचे, जितना हमने बार बार 4-5 बार अपना हाथ दिन में रुमाल बदलना, अपने बेड की चादर बदलना, और जितना हमने दिन में पानी अच्छी मात्रा में पिया, तो H1N1 को जल्दी कंट्रोल में हम कर पाए। तो इस पर आप इसमें भी इतनी प्रिकॉशन लें तो यदि मेरे लिए लगता है कि इस राइट। सो प्रोफेसर खिलनानी, वुड यू लाइक टू रिस्पॉन्ड टू दिस? जी चावला जी, हमें आपने पूछ लिया है अपना सवाल, लेट्स गेट एन आंसर टू व्हाट यू आर सेइंग। हिंदी में बताइएगा। प्रोफेसर खिलनानी वो ये कह रहे हैं कि जो प्रिकॉशंस H1N1 के दौरान बताए जाते थे, क्या वही प्रिकॉशंस कोरोना वायरस के लिए होने चाहिए? H1N1 तो फ्लू वायरस था, वो ज्यादातर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से ज्यादा फैलता था, हालांकि वो भी फोमाइट से फैलता था,
लेकिन दोनों की कंटेजियसनेस में फर्क है और हर वायरस की एक साइकिल होती है। और ये जो जो फ्लू वायरस होता है वो सदियों से दुनिया में चला आ रहा है, वो हर साल आता है और हर साल जाता है। हमें उसके बारे में पता है, हम उसको कंट्रोल कैसे करना है वो भी पता है। लेकिन ये कोरोना वायरस है, ये नॉर्मली इंसानों में नहीं होता। सिर्फ ये 2 मर्स और सार्स जो आउटब्रेक्स हुए थे 2002 में और 2013 में, उसके बाद ये कोरोना वायरस नहीं था। तो कोरोना वायरस के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो बिल्कुल फ्लू वायरस से अलग होते हैं। तो इसको H1N1 से कंपेयर करना नहीं चाहिए। हालांकि दोनों वायरल इन्फेक्शन होते हैं, दोनों लंग्स को अफेक्ट करते हैं जी। तो H1N1 को कंट्रोल करने में ज्यादा मुश्किल नहीं हुई और बहुत ज्यादा ये वो पेंडेमिक का रूप उसने नहीं लिया था। ये वायरस ने पेंडेमिक का रूप ले लिया है, इस वजह से ये चिंताजनक है। दूसरा, इसकी कंटेजियसनेस बहुत ज्यादा है। मतलब इसकी जो एक व्यक्ति अगर कोरोना वायरस, अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करते, इनके अंदर 406 मरीज पैदा हो जाते जी। उसको आप मल्टीप्लाई करते करते जाएं तो आप देखो अमेरिका, इटली और इनमें क्या हाल हुआ है। तो इसलिए उससे प्लीज आप कंपेयर ना करें और इसके लिए जो भी सावधानियां बरतनी है वो आपको बहुत अच्छी तरह से पता है और भारत सरकार और सारी दुनिया लगी हुई है जी। बिल्कुल, लगातार डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन लगातार कॉलर्स भी हैं हमारे साथ। पिंक सिटी जयपुर से चंद्र कुमार जुड़े हुए हैं। चंद्र कुमार जी, पूछिए अपना सवाल। मैं चंद्र कुमार बोल रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हम बैंक से पैसे लेके आते हैं या किसी से पैसे लेते हैं तो उस पे कोरोना के वायरस आ सकता है क्या? डॉक्टर रूपाली, हाँ, ये क्योंकि कई बार होता है कि कई लोग डिजिटल हम ट्रांजैक्शंस करने के लिए लगातार इस मंच के माध्यम से कहते हैं, लेकिन आपको बैंक भी जाना पड़ता है, तब ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? करेंसी एक पोटेंशियल सोर्स हो सकता है, इसीलिए चाइना में वहां पे वो दे हैड इवन डिस्ट्रॉयड देयर करेंसी टू एन एक्सटेंट। वो जो उनका पेपर करेंसी था वो डिस्ट्रॉयड ऑल्सो। यहाँ पे हम क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं? अगर पॉसिबल है तो आप डिजिटल ट्रांजैक्शन करिए, नहीं पॉसिबल है तो आप क्या कर सकते हैं, जो भी आप करेंसी एक्सचेंज कर रहे हैं उसको 5 से 6 घंटे के लिए या तो धूप में सुखा दें, या फिर कुछ लोग बोलते हैं पेपर रख के, कपड़ा रख के उसको प्रेस से आप कर सकते हैं। बिकॉज हमने देखा है कि हायर टेम्परेचर्स पे इट इज एक्सपेक्टेड एट वेरी हाई टेम्परेचर 60 डिग्री एंड अबव for half an hour or so the virus will get killed. So इसलिए या तो आप उसको धूप में सुखा सकते हैं 5 से 6 घंटे के लिए, या फिर प्रेस कर सकते हैं कपड़ा या कुछ न्यूज़पेपर रख के उसके थ्रू। So I think this can be done. Okay. Professor Khilnani, another question that has come in on social media handles of DD News is that if once you get COVID-19 and you have recovered from it, that means you're having immunity, then how can you get infected again? So there are many questions that are often asked, that one gets infected, one gets recovered, builds immunity, then how does one relapse? ये अभी हमें पता नहीं है, इस वायरस के कैरेक्टर हमें पता नहीं है कि यूजुअली जो वायरल इन्फेक्शन में सोचा जाता है कि एक बार जब इन्फेक्शन हो गया तो एंटीबॉडीज IgM और IgG इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है और फिर से इन्फेक्शन नहीं होता है कई सालों तक, कई बार लाइफ लॉन्ग। लेकिन कोरोना वायरस में हमारे पास कोई प्रमाण वैज्ञानिक या क्लिनिकल नहीं है कि री इन्फेक्शन नहीं होता है। हम अपने नॉलेज से और कॉमन सेंस से ये कह सकते हैं कि शायद फिर से इन्फेक्शन कोरोना वायरस से नहीं होगा। लेकिन जैसे फ्लू वायरस होता है, फ्लू वायरस हर साल म्यूटेट कर जाता है। अगर उसकी एंटीजेनेसिटी जिसको हम कहते हैं, अगर कोरोना वायरस के अगर म्यूटेशन हो जाएगा तो फिर वो इन्फेक्ट कर सकता है, लेकिन इसके बारे में अभी हमें कोई ज्ञान नहीं। Fair enough, yeah. और साथ ही डॉक्टर रूपाली, जिस तरह से हम बात करते हैं, क्योंकि हमने एसिम्प्टोमेटिक करियर्स की भी बात की और साथ ही साथ वो लोग जिसमें सिम्टम्स हैं, लेकिन क्या कोई एसिम्प्टोमेटिक व्यक्ति जिसमें सिम्टम्स नहीं नजर आ रहे, क्या वो अपने थूक से या पास रहने से वो डिजीज यानी उसे ट्रांसमिट कर सकता है? ये सवाल हमारे पास आया है। जी बिल्कुल कर सकता है। यही एक थोड़ा सा अभी हमारा एक क्योंकि हम समझ नहीं पाएंगे बिल्कुल उस चीज को, इसीलिए यूनिवर्सल प्रिकॉशंस, स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस, यूनिवर्सल या स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस का मतलब है आपको हर समय हर व्यक्ति के साथ उनको फॉलो करना है। आपको हर किसी को एज अ पोटेंशियल सोर्स ऑफ कोविड-19 इन्फेक्शन की तरह ही ट्रीट करना है। आप जिससे भी संपर्क में आते हैं, भले आपका फैमिली मेंबर हो, आपका नेबर हो या कोई फ्रूट वेंडर हो, कोई भी हो, जिससे भी आप संपर्क में आ रहे हैं, आपको ये मान के चलना है कि उस
व्यक्ति को कहीं ना कहीं हो सकता है कोई कोविड-19 का इन्फेक्शन हो, सिम्टोमैटिक हो या एसिम्टोमैटिक हो। इसीलिए हमें स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस ऑफ इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल को हमेशा फॉलो करना है। एंड स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस में क्या चीजें आती हैं? हैंड हाइजीन और हैंड वॉशिंग प्रैक्टिसेस, देन कफ एटिकेट्स। कफ एटिकेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट मीन्स अगर आपको खांसी है या आप छींकते हैं, उस समय आपको हमेशा अपने मुंह को और नाक को कवर करके रखना है। ये आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप दूसरों को या आसपास जो भी व्यक्ति उस समय हैं, आप उनको उस कीटाणु से बचाएं अगर आपके अंदर है तो उसके लिए या तो आपको प्रेफरेबली डिस्पोजेबल टिश्यू यूज करना है जब भी आप कफ करते हैं, स्नीज करते हैं, और उसको एक कवर्ड बिन में थ्रो करना है। ऐसा नहीं है कि आपने टिश्यू से कवर किया एंड उसको ऐसे ही आपने फेंक दिया, नहीं, आपको कवर्ड बिन वाले डस्टबिन में उसको थ्रो करना है। उसके अलावा या तो आप हैंकी भी यूज कर सकते हैं, पीस ऑफ क्लॉथ यूज कर सकते हैं, बट उसको आपको चेंज करते रहना, वॉश करते रहना। ऐसा नहीं है कि आपने 2 दिन तक सेम हैंकरचीफ आप यूज कर रहे हैं या पूरे दिन के लिए आप सेम हैंकरचीफ यूज कर रहे हैं, नहीं, उसका कोई पर्पस नहीं सर्व होगा। तो आपको फ्रीक्वेंटली चेंज करना है अपना हैंकी। अगर कुछ भी नहीं पॉसिबल है तो you have to cuff it out in a flexed elbow, never with the front portions of your hand. जैसे यूजली हम लोग की टेंडेंसी होती है, हम छींकते हैं तो हम अपने फ्रंट पोर्शंस ऑफ हैंड से वी टेंड टू कवर अवर नोज एंड माउथ, बट वो हम नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो जो भी ऑर्गेनिजम्स जो निकलेंगे हमारे सिक्रीशंस में while we are coughing और sneezing, वो हमारे हाथों पे आ जाएंगे। उसके बाद हम जो भी सरफेस टच करेंगे, those organisms will move on to those surfaces। और जैसा कि हम जानते हैं कि कुछ सरफेसेस पे की जैसे स्टील, प्लास्टिक, ग्लास, उस ऐसे सरफेस पे ये वायरस 3 दिन तक भी रह सकता है या उससे ज्यादा भी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप 3 दिन पहले भी कहीं छींक के गए हैं तो उस सरफेस पे ये वायरस रह सकता है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एक तो ये इस तरह के जो भी सरफेस है जिनका हाई कॉन्टैक्ट सरफेस है, इलेक्ट्रिक स्विचेस हैं, लिफ्ट के जो बटन्स होते हैं, या जो भी आपके जो पब्लिक प्लेसेस के जो भी इस तरह के डोर नॉब्स होते हैं, दे शुड बी फ्रीक्वेंटली डिसइंफेक्टेड विद सोडियम हाइपोक्लोराइड 1% एटलीस्ट ट्वाइस अ डे or 3 times a day. Okay, so 8 to 12 hourly you should be disinfecting these high contact surfaces. This is again very important, and always maintain a physical distance of 1 to 2 arms. This is again important. So these are the universal precautions, the standard precautions of infection prevention and control, which we have to follow at all times and with every other person around us. So hand hygiene, cuff etiquettes, and the social distance. Absolutely. So those are the precautions that you've outlined. You're saying they're universal in nature. Everyone should exercise those precautions. Also wearing face masks is extremely important because there are cases of asymptomatic carriers, which the question was all about. Another caller has joined us. The face masks are more for the for you to prevent you to transmit disease to others. It is not for your protection. Face mask, when you wear, you prevent the transmission of disease from so those you with to asymptomatic carriers, if everyone wears it, perhaps no one will be able to transmit the infection, symptomatic or asymptomatic. रणदीप हमारे साथ जुड़ रहे हैं पंजाब से। जी पूछिए अपना सवाल। जी मैम, थैंक यू वेरी मच। मैं पूछना ये चाह रहा था जी, मैं वर्किंग हूँ, बाहर जाता हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ या नहीं। तो अगर मैं कोरोना पॉजिटिव एसिम्प्टोमेटिक होता हूं तो व्हाट कैन आई डू व्हेनेवर आई कम टू माय होम, कि मैं अपने बच्चों से, अपनी फैमिली से इसको बचा सकूं। मुझे नहीं पता कि मुझे है या नहीं। जी, व्हाट कैन आई डू फॉर दैट? जी, ये रणदीप कुमार जी ने सवाल किया। रूपाली जी, शायद सबसे पहला सवाल हमने वही किया था कि अगर हम बाहर जाते हैं तो हम नहीं जानते कि हम क्या इससे पॉजिटिव हैं या नहीं, लेकिन जो लोग घर पर हैं उनकी सुरक्षा के लिए क्या कर सकते हैं, ये मैं आपसे भी जानना चाहूंगी और साथ ही साथ प्रोफेसर जीसी खिलानी से भी। जी बिल्कुल, जैसे कि पहले भी कहा था, अगर आप बाहर से वापस आते हैं तो आपको इमीडिएटली सबसे पहले आते ही अपने हाथ धोने हैं, अपने कपड़े बदलने हैं, उनको धोना है, नहा सकते हैं तो नहा लीजिए, वो बहुत अच्छा रहेगा। अपने जो शूज हैं उनको भी आप बाहर जाके धूप में सुखा दीजिए, और जो कपड़े आपने धोए हैं उनको भी आप कम से कम 5 से 6 घंटे के लिए धूप में सुखा दें। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको कफ के सिम्टम्स हैं या स्नीजिंग के सिम्टम्स है, कोई भी ऐसे सिम्टम है, तो आप घर के अंदर भी मास्क पहन के रखें। अगर सिम्टम्स नहीं है तो आपको मास्क पहनने की जरूरत नहीं है घर के अंदर, बट फिर भी सोशल डिस्टेंसिंग आप मेंटेन कर सकते हैं। आप बच्चों से अगर पॉसिबल है तो थोड़ा डिस्टेंस पे रहें। बाकी भी जो घर के फैमिली मेंबर्स, अगर आपको लगता है कि आपको कहीं ना कहीं ये इन्फेक्शन हो सकता है, तो आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। वही एकमात्र सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास
टूल है जिससे कि हम अपने आप को इस जी। इन्फेक्शन को दूसरों को देने से बचा सकते हैं। लगातार कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ दीपक कुमार जुड़े हुए हैं। दीपक पूछिए अपना सवाल। दीपक कुमार जुड़े हैं कोटा राजस्थान से। कोटा राजस्थान से बात कर रहा हूँ मैडम मैं न्यूज़पेपर सेलर हूँ मैडम। जो मैडम में हम घरों में न्यूज़पेपर डालने जाते हैं मैडम, उसके से क्या प्रिकॉशन करें हम कोरोना की वजह से, जैसे हम उसमें टच में नहीं आए। क्या एक बार दोबारा न्यूज़पेपर? अच्छा, न्यूज़पेपर सेलर हूँ मैडम मैं कोटा राजस्थान से। मैं घरों में वेंडर हूँ, डालने जाता हूँ, तो मैं क्या प्रिकॉशन करूँ जैसे कि मुझे संपर्क में नहीं आऊँ लोगों को। बिल्कुल डॉक्टर जी सी खिलानी जो सवाल इन्होंने पूछा है दीपक कुमार ने, और इनका सवाल जो है ना, आप बिल्कुल घबराने, एक तो घबराने की जरूरत नहीं है। जो न्यूज़पेपर आता है जो मशीनों से निकल के आता है वो तो बिल्कुल साफ होता है, उसमें कोई संभावना नहीं होती जब तक वो किसी व्यक्ति विशेष से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता है। लेकिन फिर भी आप जब डिलीवरी करके घर आते हैं तो फिर जैसे अभी आपको बताया गया कि क्या क्या प्रिकॉशन लेनी है, हाथ धोने हैं, और हो सकता है तो नहा लें और कपड़े अपने साबुन से धो के गर्म पानी धूप में डाल दें, और कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, ना कोई ज्यादा परेशान होने की जरूरत है। लेकिन ऑफ कोर्स आप मास्क पहन के जाइए। जी, सो मास्क पहन के जाइए जब आप न्यूज़पेपर लेके जा रहे हैं लोगों को घर पे, एज न्यूज़पेपर वेंडर। सुजात्रो हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं। जी पूछिए सवाल। मैडम मेरा एक एक्चुअली स्टेटमेंट से थोड़ा क्वेरी है कि कल एक स्टेटमेंट शायद मिनिस्ट्री से भी दिया गया था और आज रूपाली मैडम ने जिसको बोला है कि डबलिंग रेट इन इंडिया हैज बीन डिक्रीज फ्रॉम 3.5 days to 11 days। जी, नाउ माय क्वेश्चन इज दैट कि मैडम शायद मेरे लेवल के हिसाब से अगर नॉर्मल मैथमेटिक्स देखा जाए तो कोई भी अगर टोटल फिगर कम है और इन्फेक्शन रेट इज नियरली अबाउट सेम और स्लाइटली इंक्रीजिंग, देन जो इनिशियल फिगर है उसमें शायद आपका डबलिंग रेट कम लगेगा, और जितनी आपकी फिगर बढ़ती जाएगी उसके हिसाब से आपका डबलिंग रेट बढ़ता जाएगा। शायद सपोज इफ नंबर ऑफ इन्फेक्शन पर डे इज 200, देन from 200 to 400 it will take just 1 day, and for 400 to 800 it will take 4 days, and 800 to 1600 it will take 8 days. So what does it mean that की सुजात्रो जी, जहाँ तक डबलिंग रेट का सवाल है, आपको पता है कि प्री लॉकडाउन 3.4 डेज था। इसका मतलब ये कि डबल होने में केसेस को 3.4 डेज लगते थे। अब डबलिंग रेट जो है वो 11 दिन का हो गया है। इसका मतलब ये कि अब 11 दिन लगते हैं केसेस डबल होने में। प्रधानमंत्री ने अपने पहले ही जो एड्रेस टू द नेशन था उसमें समझाया था कि केसेस जो हैं वो बहुत जल्दी डबल हो रहे हैं। अगर पहले 10 दिन लगते थे तो उससे अब काफी कम दिन लग रहे हैं एज फार एज ग्लोबल सिनारियो इज कंसर्न्ड। इसलिए ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हेल्थ मिनिस्ट्री इसको बार बार एम्फसाइज कर रही है। आप बताएंगे डॉक्टर रविकांत, हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दैट? देखिए, अगर एक बीमारी आपकी 3 दिन में डबल हो और एक आदमी 400 लोगों को बीमारी दे रहा है तो इसका मतलब 3 दिन में 800 लोगों को बीमारी लग गई। और इसी तरह से अगर आप हर 3 दिन में कैलकुलेट करते जाएं तो एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, ये लीनियर ग्रोथ नहीं है। उसी तरह से अगर एक बीमारी 12वें दिन में डबल हो रही है और उसके बाद वो 24वें दिन में डबल हो रही है, तो जो टोटल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है कि 400 और लोग इन्फेक्ट हुए 12वें दिन में एंड सो ऑन, दैट डिफरेंस इज वेरी ड्रामेटिक। इस बात को समझना पड़ेगा कि अगर डबलिंग रेट ज्यादा आ रहा है इसका मतलब बीमारी स्लो ग्रोइंग है। अगर डबलिंग रेट फास्ट है तो बीमारी ज्यादा मैलिग्नेंट है, ज्यादा इन्फेक्टिव है, ज्यादा खतरनाक है। ये बात बड़ी एक सिंपल मैथमेटिक्स की है जी। और लगातार कॉल्स हमारे पास आ रहे हैं। हमारे साथ मध्य प्रदेश से राजेश सिंह जुड़े हुए हैं। पूछिए राजेश सवाल अपना। हाँ जी, मैं ड्यूटी करता हूँ बाहर, प्राइवेट जॉब करता हूँ मैं जी। जी, मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। तो जैसे मैं बाहर जाता हूँ तो मैं किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाता हूँ जी, और ड्यूटी करके मैं आ जाता हूँ, किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाता हूँ, नहीं कहीं बैठता हूँ मैं, और 2-3 घंटे तक मैं बाहर रहता हूँ, 4 घंटे तक। तो मेरे को फिर भी क्या कोई खतरा हो सकता है क्या? डॉक्टर जी सी खिलानी, ये सवाल लगातार हमारे साथ कॉलर्स पूछ रहे हैं कि जो लोग बाहर जाते हैं भले ही कम देर के लिए हों या ज्यादा देर के लिए एक्सपोज्ड है, तो उनके लिए किस तरह की प्रिकॉशंस ली जानी जरूरी है, क्योंकि घर पर जो लोग हैं वो तो घर पर ही हैं। हाँ, लेकिन ये बहुत डिटेल में मैडम ने भी बता दिया जी था जी जी। आप ये सोचते हैं कि आपने कहीं छुआ नहीं, लेकिन हवा के संपर्क में आते हैं और यूजुअली ये जो अंग्रेजी में कहते हैं इनएडवर्टेंट होता है, कहीं आपने छू लिया, किसी ने आपको छू लिया, किसी के कपड़े से आप टच में आ गए,
तो मेरी सलाह ये रहेगी कि चाहे आप कितनी जो एहतियात बरतते हैं, किसी भी जगह ना छूने में, वो बहुत बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन फिर भी आप घर आके वो जो आपको बताया गया, हाथ धोना, नहाना, कपड़े अपने भिगो के साबुन से धो लेना, धूप में सुखा देना, उनको फॉलो करेंगे और जूतों को भी साफ करके बाहर रख देंगे तो बेहतर होगा। इस समय ये करना जरूरी है, बहुत ज़रूरी है। और ख़ास तौर पर अगर देखा जाए डॉक्टर रविकांत, इस तरह के भी सवाल हमारे पास आते हैं कि क्योंकि हम जानते हैं कि बाहर सर्विसेज बंद है, लेकिन जो लोग घर पर खाना नहीं बना सकते, उनके पास सुविधा नहीं है और वो बाहर से किसी तरह लेते हैं खाना, तो किस तरह के प्रिकॉशंस उनको लेनी चाहिए? क्योंकि अभी हमने कई केसेस ऐसे देखे जब डिलीवरी दी गई पिज्ज़ा की तो कोरोना पॉजिटिव कई लोग हो गए, तो ऐसे में किस तरह से हम प्रिकॉशंस के साथ काम कर सकते हैं? देखिए, एज फार एज दैट केस, पिज्जा वाली आप जो बात कर रहे हैं, तो जो दे जा रहा था वो तो पॉजिटिव था, लेकिन जिनको मिला वो पॉजिटिव रेट ऐसा सिग्निफिकेंट बिल्कुल नहीं है। जी। वो नॉर्मली कोई एक इंडिकेट करता है। मेरा ये मानना है कि जो आप भोजन ले रहे हैं, हमेशा हम लोग इस तरह के कंटेनर में लेते हैं जिसमें एक इनर लेयर होती है, एक बाहर की लेयर होती है। जो हम लोग के नॉर्मली फूड के जो कैरियर हैं, उसमें एक टिफिन ऐसा होता है कि अंदर एक अलग चीज होती है, बाहर अलग होती है। तो अगर आप बाहर वाले को छोड़ दें और अंदर वाले को निकाल के खाना खा लें और बाहर वाले के लिए जैसा अभी सब लोगों ने बताया उसकी उसी तरह से चिंता करें कि उसको वॉश करना है, ये करना है और उसके बाद करें। बट बेसिकली अगर आप अंदर का खाना निकाल लें पूरे, जिसमें कि स्टील का पूरे बॉक्सेज आते हैं, तो योर टिफिन इज डिजाइन दैट वे कि आपको बाहर का छूने की जरूरत नहीं है। जी। There's another caller who's joined us. Shubham has joined us from Indore in Madhya Pradesh. जी शुभम, पूछिए सवाल। हेलो जी शुभम, सवाल पूछिए अपना। मेरा एक सवाल था। जी जी पूछिए, आपकी आवाज हमको आ रही है। कोरोना वायरस की कई फैमिली होती है, जो मैंने सुना था कि कोरोना वायरस 7 या 8 फैमिली में डिवाइड है। तो जब भी अपन कोरोना वायरस का जब कोई चेकअप होता है तो सुनने में आया कि कोरोना वायरस के कुछ 7 फैमिली मेंबर होते हैं। सुना था कि कोरोना वायरस 7 फैमिली मेंबर में डिवाइड है जी। इसमें सबसे ज्यादा घातक कोविड-19 है। तो जब अपनी कोरोना जांच होती है, इसमें 7 में तो कोई भी कोरोना पॉजिटिव आया तो रिपोर्ट पॉजिटिव ही आती है। रूपाली, किस तरह से, क्योंकि इस तरह की बातें आती हैं कि ये कौन सी फैमिली से हैं, लोग ज्यादा से ज्यादा इंटरनेट पर सर्च करने की कोशिश करते हैं और ये जो थ्योरीज होती हैं ये कई बार कंफ्यूजिंग भी हो जाती हैं किसी आम इंसान के लिए। देखिए, कोरोना वायरसेस जो हैं वो बिल्कुल नई चीज नहीं है। They exist since 1960s. For more than half a century, we have already had them. And उसकी बहुत सारी families होती हैं, अल्फा, बीटा, गामा. But जो humans को infect करती हैं, usually वो जो viruses हैं, वो बीटा कोरोना वायरस फैमिली के हैं। उसमें से अभी तक जो लाइफ थ्रेटनिंग या जो आपके जो सिवियर डिजीज वाले जो 3 फॉर्म्स हैं, वो है मर्स, सार्स और नोवल कोरोना वायरस। मर्स यानी कि मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, इसका जो एपिडेमिक हुआ था ये मिडिल ईस्ट कंट्रीज में हुआ था ईयर 2012 एंड 13 में। उसके बाद जो सार्स था, जो सार्स 1 वायरस से होगा जो हुआ था, वो दैट वाज इन 2002, वो दैट वाज अगेन इन चाइना, वो चाइना में था। अब है नोवल कोरोना वायरस, जिसको कि पहले हमने नोवल कहा, पर बाद में देखा गया कि जो सार्स वायरस था जिसने कि सार्स 1 किया था, ये उससे काफी सिमिलर है, तो इसको अब हमने सार्स कोरोना वायरस 2 का नाम दे दिया है। तो दिस इज क्वाइट सिमिलर टू द वायरस व्हिच कॉज्ड सार्स एपिडेमिक इन 2002 इन चाइना। ठीक है, अब बात यह है, ये आप बोल रहे हैं कि अगर एक वायरस हो गया उससे पॉजिटिव आएगा तो क्या सबसे पॉजिटिव आएगा? ऐसा नहीं है, क्योंकि जो RT-PCR जब टेस्ट करते हैं उसमें जीन सीक्वेंसिंग करते हैं, तो उसमें एग्जैक्टली जीन्स को देखा जाता है। तो ऐसा नहीं है किसी और फैमिली के कोरोना वायरस से अगर आप इन्फेक्ट हुए होंगे तो आपको ये वाला कोरोना वायरस का टेस्ट पॉजिटिव आ जाएगा। इसके लिए स्पेसिफिकली इसी वायरस का जीन सीक्वेंस जो है उसकी स्टडी करके आपको, और जो टेस्टिंग होती है वो भी 2 स्टेप में होती है, स्क्रीनिंग होती है, कंफर्मेशन होती है। तो ऐसा नहीं है कि आपको एकदम से रिपोर्ट आ जाती, इट हैज टू बी डन इन 2 स्टेप्स। स्क्रीनिंग में पॉजिटिव आते हैं, अगर सिमिलर जीन सीक्वेंस मिलता है, उसके बाद उसका लेवल 2 करते हैं। तो इट इज ऐसा नहीं है कि अगर आपको किसी और कोरोना वायरस से इन्फेक्शन हुआ होगा तो भी ये वाला टेस्ट पॉजिटिव आ जाएगा। और आप बोल रहे थे कि ये सबसे ज्यादा फेटल है, ऐसा नहीं है। मर्स की जो फेटालिटी है, उसकी फेटालिटी थी 34 से 37%, विच वाज वेरी हाई। उसके बाद जो सार्स की फेटालिटी थी, दैट वाज अराउंड 10 to 15%। बट ये जो नोवल कोरोना वायरस है, इसकी फेटालिटी है केवल 2 to 3%।
up to 4%, 7%, 12% स्पेसिफिक 7% कंट्रीज में globally, है, yeah. बट मोर और लेस जैसे कि अपनी कंट्री में भी अगर बात करें इट इज अराउंड 3%. तो अगर बाकी मर्स और सार्स से कंपेयर करें स्टिल दिस इज मच मोर बिनाइन. बट प्रॉब्लम क्या है, इट इज अ नोवेल वायरस, सो वी डोंट हैव एनी प्री एग्जिस्टिंग इम्यूनिटीज टू इट. तो जो भी एक्सपोज होगा वो उससे इन्फेक्ट होगा ही होगा. जी जी. एंड द कंटेजियसनेस इज मोर. बिल्कुल. जो आर नॉट बोलते हैं दैट इज 2.8. मतलब एक आदमी इन टर्न विल इन्फेक्ट अनदर 3 पीपल. जो नॉर्मल इन्फ्लुएंजा होता है उसका 1.3 होता है. बिल्कुल. संक्रमण का ही जो सबसे ज्यादा खतरा है, इसलिए कहा जाता है कि आप घर पर रहें. फैटेलिटी उतना नहीं. बिल्कुल, तभी कहा जाता है कि घर पर रहें, स्टे होम स्टे सेफ. हमारे साथ किशन जुड़ गए हैं दिल्ली से. किशन, पूछिए अपना सवाल. हाँ, नमस्कार जी. जी पूछिए कृष्ण. मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे इसमें बता रहे थे अभी कि जैसे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं है, ये एक लीनियर ग्रोथ जैसा चल रहा है अभी. तो अगर जैसे सैंपल सर्वे या सैंपल टेस्टिंग वगैरह नहीं होती है तो इसके बीच में हम ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि इसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है या नहीं? क्योंकि देखा जाए तो 2000 से 4000 पहुंचने में टाइम कम लगेगा, वैसे ही 20,000 से 40,000 पहुंचने में तो टाइम ज्यादा ही लगेगा. इतने कम टाइम, मतलब कहने का मतलब 15,000 से 30,000 पहुंचने में टाइम ज्यादा लगता है 15 बजाय कि 15 से 30 पहुंचने में. तो क्या हम एक्चुअल में बता सकते हैं ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है या नहीं? जी कृष्णा जी, जब 1 महीना हुआ था लॉकडाउन का तो हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक विस्तृत में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके समझाया था कि कैसे जो कोविड-19 का ग्राफ है भारत में वो लीनियर है और एक्सपोनेंशियल नहीं है. और एक कंपैरिजन भी आ चुका है गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से कि कैसे बाकी कंट्रीज से इंडिया जो है उनका ग्राफ काफी लीनियर है और जो कर्व है वो फ्लैटन हो रहा है. लेकिन फिर भी मैं आपका सवाल डॉक्टर रविकांत के पास ले जाती हूँ. जी डॉक्टर रविकांत, वुड यू लाइक टू रिस्पॉन्ड टू दिस इन हिंदी प्लीज? देखिए, इसको अगर अभी हमने जो कैलिफोर्निया की स्टडी आई उसमें देखा गया करीब जितने लोग पॉजिटिव रहे उससे बहुत ज्यादा एंटीबॉडी से जो टेस्ट किया गया वो एसिम्प्टोमेटिक पॉजिटिव थे. अगर आपकी बात का बिल्कुल प्योर साइंस से जवाब देंगे तो जो जिनको बीमारी हम कंफर्म करना चाह रहे हैं वो तो RT-PCR टेस्ट बहुत बढ़िया है. लेकिन अगर हम चाहते हैं कि एक वाइडर पॉपुलेशन में करीब जिनको इन्फेक्शन हो चुका है और 10-15% बाद 10-15 दिन बाद हम जानना चाहते हैं तो एक एंटीबॉडी का वो एक रिफाइंड टेस्ट करना पड़ेगा जिससे एक पॉपुलेशन में पता लग रहा है कितनों को इन्वॉल्वमेंट है लेकिन उनको बीमारी के लक्षण नहीं है, वो एसिम्प्टोमेटिक है. तो एग्जैक्ट नंबर को निकालने के 2 ही तरीके हैं. RT-PCR जो कि 2-3 स्टेप वाला एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है लेकिन प्रूफ है कि अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है. दूसरा तरीका एंटीबॉडी टेस्ट है और इन दोनों टेस्टों को एक वाइडर स्केल पे ले जाना पड़ेगा जिसके इकोनॉमिकल एंगल हैं, जिसके टेक्निकल एंगल हैं, जिसके फाइनेंशियल एंगल हैं, जिसके एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल हैं. एक बड़ी पॉपुलेशन में एक अलग नजरिया है, स्पेशली जहां मनी लिमिटेड है. Dr. Rupali, there's another question that's coming on social media, and that is that what precautions should be taken by the person who's dealing with public cash at metro stations. Metro stations are shut as of now, but whenever they resume, if and when the lockdown is relaxed going forward, the person perhaps is dealing with public cash at metro stations would want to know the kind of precautions he or she should take. Yes, they can wear gloves. Okay, so one way of protecting yourself will be to wear gloves. And whenever you remove, even when you're wearing your gloves, never touch the front portions of your face, mouth, nose or eyes. This is very important. आपने gloves पहने हैं या नहीं पहने? अगर आप पैसे छू के अपने मुंह, नाक, आंख को छुएंगे तो इन्फेक्शन ट्रांसमिट होगा. अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको सीधा करेंसी नोट से इन्फेक्शन ट्रांसमिट नहीं हो जाएगा. तो बहुत इंपॉर्टेंट है एक तो आप ग्लव्स पहने, और ग्लव्स पहने या नहीं पहने अपने मुंह के ये सब एरियाज को ना छुएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. रिस्ट वॉचेस, इस तरह की चीजें जो आपके रिंग्स होती हैं, ऐसी कोई भी चीज ना पहने क्योंकि इन पे फोमाइट्स जो हैं ज्यादा समय तक रह सकते हैं. आप हाथ वॉश भी कर लेंगे बट फिर भी रिस्ट में, रिंग्स में ये सब चीजें रह सकती हैं. तो ऐसी कोई भी चीज ना पहने एंड फ्रीक्वेंटली हैंड वॉश करते रहें. अगर आपको कैश से डील करना भी है तो आप ग्लव्स पहने, बट उसके बावजूद भी आपको हैंड वॉश करते रहना है, और ग्लव्स पहने भी आप सैनिटाइजर का प्रयोग बीच में कर सकते हैं. So I think that will be the most important way of protecting yourself from getting infected if you are dealing with the currency, public currency in general. There's another caller who's joined us. Krishna Prasad has joined us from Sikkim. Yes, Krishna, please ask your question. Yes, namaste ma'am. जी पूछिए सवाल. मैम, सिक्किम एक ऐसा राज्य है जहाँ अभी तक कोविड का कोई केसेस नहीं है.
Sikkim is the only one zero COVID cases in India, मैडम। जी सवाल पूछिए। हाँ मैडम, यहाँ का जो हमारा मौसम जो है सिक्किम का थोड़ा कोल्ड वेदर है ना मैडम यहाँ का, और ऐसा ना हमको कैसा खाने से चाहिए मैडम? I think you are asking us about the precautions that you need to take as far as food intake is concerned. You're also telling us that the temperatures there are quite moderate to cold. So let's take that question to Mr. Khilnani. Professor Khilnani, would you like to respond to this? What is the question? Can you repeat, please? What is the question? Professor Khilnani, the question is from a caller from Sikkim who's saying that the temperatures there are moderate to cold, and the kind of precautions that they should take in such a scenario, even with regard to food intake. No, precautions will be same as for this virus doesn't seem to be affected by the usual cold. Even the hot countries like Africa, the incidence has been the same, so the precautions won't be different. Okay, so the precautions won't be different. As far as temperatures are concerned, if you are with us, Mr. Krishna, there is no study establishing that there is a linkage between temperature and the virulence of the virus. But nevertheless, there are people among experts who believe that the virus may well weaken with high temperatures, but there is really no authentic study on that as of now, which can be alluded to. But बिल्कुल मुनमुन, जो तो आपने कहा ना, उसमें एक और बात डॉक्टर रविकांत मैं जोड़ना चाहती हूँ कि इस तरह के मिथ्स या हम कह सकते हैं ये धारणाएं भी सामने आती हैं डॉक्टर रविकांत की, हाँ एसी नहीं चलाना चाहिए, कूलर नहीं चलाएं। बिल्कुल हम जानते हैं क्योंकि अब भारत में जो है वो मौसम काफी तब्दील हो रहा है कि कहीं ना कहीं ठंड से वायरस जो है वो ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है। इस तरह की कई धारणाएं हम घरों में सुनते हैं, तो कोई क्या थ्योरी है इसके पीछे या ये सिर्फ धारणाएं हैं? देखिए, अधिकतर तो धारणाएं हैं। अगर आपका एयर कंडीशनिंग एक ऐसा है जो सिर्फ आपके रूम को ठंडा कर रहा है, वो कहीं और से हवा नहीं ला रहा है, और आप में कोई बीमार नहीं है, तो कोई कारण नहीं कि आप बीमार हो जाएं। उसको भी इम्प्रूव करने के लिए दो चीजों की जरूरत है। एक तो ह्यूमिडिटी अपनी बढ़ा दीजिए, और ह्यूमिडिटी बढ़ाने का सिंपल तरीका है कि कोई छोटी बाल्टी या बड़े चौड़े बर्तन में पानी आप कमरे में रख दें तो ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी। और अगर मॉडरेट कूलिंग रखें, जो हम कहेंगे 24 और 26 के बीच में है या 24 और 28 डिग्री के बीच में है, तो ये बहुत बिल्कुल ठीक बात है। जहां तक कूलर की बात है, कूलर सिर्फ ह्यूमिडिटी बढ़ाएगा, थोड़ी ठंड बढ़ाएगा, लेकिन बाहर से खुली हवा लाएगा और कहीं हवा बाहर ले जाएगा जी। ऐसी अवस्था में अगर घर में कोई बीमार नहीं है, इससे बीमारी नहीं होगी। लेकिन अगर आप वाइडर एक एसी डक्ट वाली एयर कंडीशनिंग में है, जहां सेंट्रल एयर कंडीशनिंग है, जहां कहीं और से हवा आ रही है और आपको पता नहीं कि जो दूसरी जगह है उनका क्या हाल है, वो एक इशू एक डिफरेंट है। तो सेंट्रल एयर कंडीशनिंग एक डिफरेंट इशू है। स्प्लिट या विंडो एसी बिल्कुल ठीक है, इनमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपका अपना रूम जिसमें आप अकेले हैं या अपने परिवार के साथ में हैं, लिमिटेड नंबर में, वो बिल्कुल सेफ है जी। बिल्कुल आपने डॉक्टर रविकांत जो बात कही, लगातार हमारे पास ऐसे कई कॉल्स आते हैं और कई लोग हमसे इस तरह के सवाल पूछते हैं। आई होप कि उनकी जो ये संशय है, संदेह मन में था, वो जरूर उसको क्लैरिटी मिली होगी। हमारे साथ नोएडा से भी कॉलर जुड़े हुए हैं, पूछिए अपना सवाल। और उनका नाम मैं देख पाई, रोहित जुड़े हुए हमारे साथ नोएडा से। रोहित, पूछिए अपना सवाल। मैम, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो कोरोना के मरीज हैं जी, जो इलाज के बाद ठीक हो जाते हैं, तो उनमें जो इम्यूनिटी होती है वो क्या लाइफ लॉन्ग होती है या किसी पर्टिकुलर टाइम तक के लिए होता है? डॉक्टर रूपाली किस तरह से देखती है, क्योंकि ये कई बार होता है कि वो मरीज घर होकर मतलब ठीक होकर भी क्वारंटीन होने के बाद वापस आता है, लेकिन कहीं ना कहीं संशय जो उनके साथ रहने वाले हैं या आसपास के लोग हैं वो बरकरार रहता है उनके बीच। बिल्कुल, देखिए अभी तक ये स्टैब्लिश नहीं हुआ है कि अगर एक बार आप कोरोना वायरस से इन्फेक्ट होते हैं तो उसके बाद इम्यूनिटी कितने दिन के लिए रहेगी। कुछ केसेस आए हैं जिसमें कि एक बार इन्फेक्ट होने के बाद भी लोग दोबारा से इन्फेक्ट हुए हैं। उसमें ये कहना मुश्किल है कि वो म्यूटेशन की वजह से हुआ या जो पहला सैंपल नेगेटिव टेस्ट हुआ था वो ठीक से नहीं लिया गया था। अभी तक ये सब धारणाएं हैं, एस्टैब्लिश नहीं हो पाया है कि क्या कारण है जिस वजह से ठीक होने के बाद भी कुछ लोगों को दोबारा ये इन्फेक्शन हुआ है। बट अभी तक ये कहना मुश्किल है, अभी एविडेंस नहीं है कि एक बार बिल्कुल ठीक होने के बाद क्या ये इन्फेक्शन दोबारा हो सकता है या नहीं हो सकता। बट फिर भी ये कहेंगे कि एक बार आप जाते हैं जब ठीक होके घर वापस, उसके बाद नेक्स्ट 2 वीक्स के लिए आप एक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें बाकी लोगों से जो आपके घर में हैं और आसपास हैं। तो अनदर 2 वीक्स ऑफ पैसिव सर्विलेंस विल बी एडवाइज्ड इवन आफ्टर यू आर डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल। सो 2 हफ्ते के लिए और आप थोड़ी सावधानी एक्स्ट्रा बरतें डिस्चार्ज होने के बाद भी। बट उसके बाद
ठीक है. Okay, Dr. Ravikant, another question that's come on social media is Swasthya Nidhi app going to make an impact as far as eradication of pandemic COVID-19 is concerned? We are aware that the J&K administration has launched this app to collect health data of every household. So the question is on the effectiveness of this app for eradicating the pandemic. I think Arogya Nidhi app, which is launched by Government of India, is an essential app, is a mandatory app, and it should be adopted by every citizen, every employee, everyone. And the rationale is very simple. Once you get the data, in case you are diseased, the data will be fed and others will know what is the situation. Then it tells you in the morning, are you safe? Are you in an orange or a red line? If you are in an unhappy line, then you are supposed not to go anywhere, stay home. Second thing, it also analyzes your own health data in a very simple language, in an effective language. That what is the risk factor, it tells you so sensibly. And third thing, it also calls for, in case you are a health worker, are you willing to volunteer? I think it's a beautiful app. It must be employed by everyone, and it is almost like a mandatory thing now. Absolutely. So as far as Arogya Setu app is concerned, you must download it, operationalize it so that you are safe, others are safe. And the question was on the Swasthya Nidhi app, which has been launched by the J&K administration. So if surveyors come to your home, make sure that you give them the right information that is for your protection and for the protection of the entire community. और क्योंकि हम बात कर रहे हैं उन्हीं सभी एहतियातन जो कदम हमें उठाने चाहिए कोविड-19 से लड़ने के लिए, तो डॉक्टर रूपाली एक और कदम जो लगातार हम हमेशा कहते हैं और आयुष मंत्रालय की वेबसाइट पर भी है और हम लगातार अपने बुलेटिन में इस शो के माध्यम से भी कहते हैं, वो है प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, यानी कि इम्यूनिटी। तो जो इम्यूनिटी है उसको बढ़ाने के लिए किस तरह से हम काम कर सकते हैं, और खासतौर पर जो बच्चे हैं उनके लिए और जो बुजुर्ग हैं उनके लिए। जी बिल्कुल, जैसे बच्चे और बुजुर्ग दोनों ही हाई रिस्क, बिल्कुल हाई रिस्क है, बिल्कुल एल्डरली खास तौर पे। पर देखिए इम्यून बूस्टिंग के लिए अभी हमारे पास कोई प्रूवन एविडेंस नहीं है कि ये ट्रीटमेंट लेने से आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी। पर जैसे कि आयुष मंत्रालय की जो वेबसाइट है उस पर कुछ नेचुरल तरीके आपको बताए गए हैं जिससे कि आप अपनी इम्यूनिटी बूस्ट कर सकते हैं। उसमें कुछ चीजें हैं जो कि बहुत हमेशा से हमारे खाने में यूज होती हैं। आप गार्लिक का यूज, कोरिएंडर का यूज और बाकी जो तुलसी का यूज है ये सब करें। हल्दी दूध यानी कि गोल्डन मिल्क, यूएस में आजकल गोल्डन मिल्क के नाम से हल्दी दूध बहुत फेमस है और इंडिया में शायद लोग उतना हल्दी दूध का यूज नहीं कर रहे हैं। तो अब वी शुड कम बैक टू आवर रूट्स, तो वी शुड ऑलवेज यूज दीज नेचुरल वेज ऑफ हीलिंग आवर सेल्फ। तो आप हल्दी दूध लें, आप ये जो जिंजर है, तुलसी है, कोरिएंडर है, इन सब चीजों का अपने खाने जो कि रूटीनली भी हम लोग करते हैं वो करें। योगा करें, मेडिटेशन करें, रेगुलर एक्सरसाइजेस करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पॉजिटिव माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करें। अगर आप डिप्रेस्ड फील करेंगे, एंग्शियस फील करेंगे तो आपकी बॉडी अच्छे से फाइट नहीं कर पाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम हमेशा सतर्क रहें, सजग रहें, सही चीजों को फॉलो करें। आप जो मिथ्स हैं उनके जाल में ना फंसें, जो फॉल्स इंफॉर्मेशन है उनमें ना फंसें। केवल जो आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है उस पे जाएं, जो भी आपको डाउट्स हैं वहां से क्लियर करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉल्स इन्फॉर्मेशन का आप कुछ भी सोर्स ना यूज करें और बहुत जेन्युइन चीजें फॉलो करें। और बाकी जैसे आप बोलते हैं कि मेडिटेशन, योगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी गोल्डन मिल्क एंड ऑल जो भी आप आयुष की वेबसाइट पे आपको और भी कुछ चीजें मिलेंगे, कुछ हर्बल टीज हैं, कुछ डिकॉक्शंस हैं जो कि उसमें मेंशन किए गए हैं कि आप वो लें तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। So you can visit the Ayush Ministry's website and take down the kind of precautions that you need to take. Professor Khilnani wanted to come in at one point in time earlier. No, it's fine. I just wanted to say something about the recovery from ये जो कोरोना वायरस है। हालांकि हम कहते हैं कि जब शुरू होता है उसके 14 दिन बाद नेगेटिव हो जाता है, लेकिन एक स्टडी चाइना से आई है जिसमें देखा गया है कि 42 डेज तक करीब 3% केसेस में RT-PCR पॉजिटिव हुआ है। तो जो आइडियल सिचुएशन होती है उसमें ये होता है कि जब बुखार शुरू हुआ उसके बाद करीब 14 दिन बाद 2 बार RT-PCR अगर नेगेटिव है, वो भी 24 घंटे के गैप पे करें, तभी हम कह सकते हैं कि ये पर्टिकुलर पर्सन अब नॉन कंटेजियस हो गया है। अगर वो पॉजिटिव होता है तो उसको रिपीटेडली करना पड़ेगा जब तक वो 2 बार उसके टेस्ट नेगेटिव नहीं आते, क्योंकि तब तक वो उस वायरस की शेडिंग चलती रहती है और उसकी वजह से
उसके परिजनों को और सबको खतरा होता है, तो उसको क्वारंटाइन या आइसोलेशन में रहना पड़ेगा। इसका फ्लिप साइड इज दैट ये भी सोचा गया है कि ये जो पॉजिटिव आता है ये डेड वायरस की वजह से आता है, लेकिन जब आरटीपीसीआर पॉजिटिव आता है तो इट शुड बी प्रिज्यूम्ड टू बी लाइव वायरस, क्योंकि अगर इसको प्रिज्यूम नहीं करेंगे, बिकॉज देयर इज नो टेस्ट for the viral cultures which is not done routinely to find out whether it is a dead virus. So what I want to send the message was कि 14 दिन का जो समय है ये सैक्रोसैंक्ट नहीं है। जब आरटीपीसीआर नेगेटिव आ जाए 2 बार तभी हम उसको नेगेटिव कह सकते हैं। तो ये 21 दिन भी चल सकता है, 28 दिन भी चल सकता है, 35 दिन भी चल सकता है। जी बिल्कुल. So twice the RT-PCR test need to come negative for a person to get the confirmation that the person has totally recovered or cured. And there's another caller who's joining us. परमजीत हमारे साथ जुड़ रहे हैं पटियाला से. जी परमजीत, पूछिए अपना सवाल. नमस्कार डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा प्रोग्राम है जो सभी के लिए बहुत बेनिफिशियल है. तो मैं पूछना चाहती हूँ कि जो ये प्रॉब्लम है, जो ये इन्फेक्शन है इसका कोविड-19 का, ये कितने दिन में ठीक हो जाता है? जब कोई पेशेंट आता है ट्रीटमेंट के ड्यूरिंग ट्रीटमेंट कितने दिन लगते हैं इसको ठीक होने के लिए? और एक मैं ये पूछना चाहती हूँ, फॉरेन कंट्रीज में डेथ रेट बहुत ज्यादा है और हमारे इंडिया में जितने इन्फेक्टेड है उसमें से थोड़ा रिकवरी ज्यादा हो रही है. इसका रीजन क्या है? और जो लोग, कुछ लोग हम देखते हैं कि पुलिस वाले हैं जैसे रोड पे होते हैं, उनके क्या सभी के टेस्ट हुए होते हैं क्योंकि वो आम पब्लिक के रिलेशन में आते हैं? और कुछ लोग ऐसे पुलिस वाले ही जैसे किसी का कोई बर्थडे मना रहे हैं या किसी की मैरिज एनिवर्सरी के लिए केक लेके जा रहे हैं, क्या वो जो केक वगैरह बनते हैं वो उससे कैसे पता चलेगा कि जो बनाने वाला वो इन्फेक्टेड नहीं है? ये बहुत चिंता का विषय. मैं इन बातों पे सवाल चाहती हूँ सर. थैंक यू सो मच. जी 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 परमजीत, आपने काफी सारे सवाल पूछ लिए हैं. रविकांत जी, अगर आप जल्दी से इन सारे सवालों का जवाब दे दें. एक तो ये पूछा था कि ट्रीटमेंट टाइम कितना लगता है इंडिया में, इंडिया कैसे बाकी कंट्रीज से बेहतर कर रहा है अगर हम रिकवरी की बात करें, और क्या जो कोविड वॉरियर्स हैं जैसे सिक्योरिटी पर्सनल हैं, डॉक्टर्स हैं, ये क्या सारे टेस्टेड होते हैं? जो आपके पास टेक अवेज लेके आते हैं, खाना लेके आते हैं, जो केक्स वगैरह बनाते हैं बेकरीज में, क्या वो टेस्टेड होते हैं? कैसे जाना जाए कि वो इन्फेक्टेड हैं कि नहीं? देखिए 95% लोग बिल्कुल ठीक हो जाएंगे. अभी आपको जो रिकवरी टाइम लग रहा है या रिकवरी रेट लग रहा है, इसके लिए समय चाहिए. 90% लोगों को कुछ नहीं होगा कोरोना इन्फेक्शन होने के बावजूद भी, और जिनको नहीं हुआ इन्फेक्शन उनको तो चिंता की बात नहीं है. पहली बात तो ये है. दूसरी बात ये, रिकवरी टाइम जो है हम लोगों ने देखा है ये 15 दिन से लेकर 45 दिन तक गया है. लेकिन अगर आप आईसीयू या एक एडिशनल केयर में रहें तो ये टाइम लंबा भी चला गया है. तो इस पे डिपेंड करता है आप एसिम्प्टोमेटिक रहे हैं, सिम्प्टोमेटिक हैं, हॉस्पिटल असिस्टेंस की जरूरत है, आईसीयू की जरूरत है, वेंटिलेशन की जरूरत है. पांचों कैटेगरी में रिकवरी टाइम बिल्कुल अलग अलग है. जहां तक बाहर से सामान लाने की बात है, अगर हम ये मान के चलें कि हमने आउटर कवरिंग को अपना एक संभाल लिया और इनर उसको बिल्कुल ठीक कर लिया तो बिल्कुल आप सेफ हैं. जहां तक हेल्थ वर्कर और फ्रंट लाइन वर्कर की बात है, इनमें से जो भी सिम्प्टोमेटिक होते हैं उन सबका टेस्ट होता है. एसिम्प्टोमेटिक का टेस्ट नहीं होता है, लेकिन अगर किसी तरह का भी संशय होता है उन सबका टेस्ट होता है. जी डॉक्टर खिलानी, जिस तरह से लगातार हम बात करते हैं कि हम अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो है नहीं जो हमें जिसको इस्तेमाल करें, लेकिन लगातार जो लोग खुद की गाड़ियों से ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस से आ रहे हैं, या ऑफिस उनको गाड़ियां प्रोवाइड कर रही हैं, उसकी सैनिटेशन को लेकर किस तरह के प्रिकॉशंस बरतने की जरूरत है? नहीं, इससे पहले जो एक मैडम ने बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछा कि जो लोग वॉरियर्स हैं उस पर थोड़ा ऐड करना चाहता हूँ. जी जी. जैसे हॉस्पिटल की बात करें, जैसे हॉस्पिटल में जो भी हेल्थ केयर वर्कर्स, डॉक्टर, नर्सेस, स्वीपर्स, ऑर्डरलीज, जो भी किसी मरीज से एक्सपोज हो जाते हैं, बीमार नहीं होते वो, अगर एक्सपोज हो जाते हैं उनको क्वारंटाइन कर दिया जाता है. क्वारंटाइन का मतलब होता है कि वो एक कमरे में अलग रहेंगे और अपने आप को किसी से भी एक्सपोज नहीं करेंगे. तो ये उनका प्रश्न का उत्तर है कि क्या केयरफुल, उनका जो डर है कि जब अस्पताल जाते हैं या पुलिस वाले वगैरह, जहाँ तक पुलिस कर्मियों का सवाल है वो उनको क्वारंटाइन नहीं किया जाता. लेकिन जो सीरियसली, मतलब जिसमें हाई प्रोबेबिलिटी होती है कांटेक्ट की, जैसे आईसीयू में जो स्टाफ नर्स जो कोविड पेशेंट की देखभाल करती है, उसको 2 हफ्ते की ड्यूटी के बाद 1 हफ्ते चाहे पॉजिटिव हो चाहे पॉजिटिव नहीं हो, उसको छुट्टी देके
अलग रूम में रखा जाता है, अपने घर भी नहीं जाने दिया जाता, तो ये केयरफुल उसमें रहते हैं। जी, तो आप ये कह रहे हैं कि जो हेल्थ वर्कर्स अगर कभी इन्फेक्टेड पाए जाते हैं तो उनको या तो होम क्वारंटीन में रखा जाता है या उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रखा जाता है, असेसमेंट पे डिपेंड करता है। अगर एक्सपोज करते हैं तो भी यदि इन्फेक्टेड पाए जाते हैं तो नहीं ठीक है, और अगर एक्सपोज होते हैं तो भी ऐसा हमारे सब चीज होते हैं तो भी क्वारंटाइन करते हैं। पॉजिटिविटी तो उसमें क्योंकि इसमें एसिम्प्टोमेटिक भी पॉजिटिव मतलब कंटेजियसनेस होती है, इसलिए टू बी एक्सट्रीमली कॉशियस जो भी एक्सपोज होते हैं उनको क्वारंटाइन कर दिया जाए। बिल्कुल सतर्कता का काफी, कोई और प्रश्न? बिल्कुल सतर्कता काफी है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, डॉक्टर बोलिए। Another caller who's joined us, Seema has joined us from Ghaziabad. I'll come to you, Professor Khilnani, for that, and you may also complete the point that you were making earlier. Seema जी, पूछिए अपना सवाल। यस मैम, नमस्ते मैम, सीमा बोल रही हूँ गाजियाबाद से। जी पूछिए। मैम मेरे को ये पूछना था कि गाजियाबाद में हम फ्लैट में रहते हैं, तो फ्लैट के बाहर ही हमारे कूलर लगा हुआ है विंडो में जी, और मैम कुछ लोग वहाँ पर खड़े भी हो जाते हैं। अगर बाय द वे हमें तो पता नहीं है उनको कोरोना है या नहीं है, उनके अंदर सिम्टम्स, बट मैम वो अगर छींकते हैं या खांसते हैं और ड्रॉप कुछ वहाँ से लेके कूलर अंदर फेंकेगा तो कोई दिक्कत तो नहीं है, ये पूछना चाह रही थी। जी प्रोफेसर खिलनानी, जल्दी से जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि वो घर में अपने कूलर यूज कर रहे हैं, लोग बाहर अगर हैं वो इन्फेक्टेड हैं और अंदर इन्फेक्शन तो नहीं आ जाएगा? वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन, और ये सिर्फ ये दर्शाता है कि पैनिक है पूरे कंट्री में लोगों को। आपको इस चीज से मेरे ख्याल से घबराने की कोई जरूरत नहीं है कि बाहर कोई खड़ा होगा और छींक रहा होगा और कूलर में चला जाएगा और उससे अंदर आएगा। एक उसका ये रीजन है, एक तो जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है वो तो है, लेकिन एयरबॉर्न ट्रांसमिशन बहुत स्ट्रांग नहीं है और इसका कोई बहुत ज्यादा वैज्ञानिक प्रमाण भी नहीं है, इसलिए आप घबराएं नहीं, अपना कूलर आराम से चलाएं, कुछ नहीं होगा। जी रविकांत जी, 2 क्वेश्चन आए हैं, जल्दी से जवाब दे दीजिए, समय हमारे पास खत्म हो चुका है सोशल मीडिया पे। एक वो पूछ रहे हैं कि मुझे ब्रीदिंग डिफिकल्टी है, क्या मुझे कोरोना का टेस्ट कराना जरूरी है? दूसरा ये वो पूछ रहे हैं कि यदि टेस्टिंग कराना हो तो क्या प्रक्रिया होगी, हमको क्या जाना पड़ेगा नियर बाय सेंटर में या फिर मतलब घर पे स्क्रीनिंग के लिए कोई आएगा? जो इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस है ILI, उन सभी में आजकल अगर हम लोग एडवाइस करते हैं कि अगर आपकी ये प्रॉब्लम पहले से है, सालों से, तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर अभी हो गई है, बढ़ गई है, तो आपको कोरोना टेस्ट कराना चाहिए। इसके टेस्ट कराने के 2 तरीके हैं, या तो आप प्राइवेट पैथोलॉजी यूज कर सकते हैं या सरकारी सिस्टम। सरकारी सिस्टम में आपको जाके टेस्ट कराना पड़ेगा। प्राइवेट में सुविधा हो सकती है कि वो आप किसी डिमार्केटेड पॉइंट पे आसानी से बुला के वहां टेस्ट करते हैं। तो आपको ये चुनना पड़ेगा कि आप आयुष्मान में अगर आपका पेमेंट हो सकता है तो प्राइवेट में भी फ्री हो जाएगा, और नहीं हो सकता है तो आप प्राइवेट में पेमेंट करा सकते हैं, सरकार में तो फ्री होगा ही होगा। जी चलिए, हमारे पास समय कम है, लेकिन तमाम जो डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े इस खास शो पर और अपने विचार इस मंच से साझा किए, डॉक्टर रूपाली मलिक आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर रविकांत आपका भी, और साथ ही साथ प्रोफेसर GC खिलानी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम जो कॉलर्स जिन्होंने हमें कॉल किया और उनके मन में मुनमुन जो संदेह थे, सभी जो तमाम डॉक्टर्स यहाँ मौजूद थे, उन्होंने पूरी कोशिश की कि वो ये सारे संदेह जो है वो मिटा पाए। लेकिन एक बात जो तमाम डॉक्टर्स ने भी आपसे कही, हम भी आपसे लगातार कहते हैं कि सैनिटेशन का यानी कि जो सतर्कता है वो सबसे बड़ा उपाय है, एहतियात बरतना सबसे बड़ा उपाय है अगर आप कोविड-19 को भारत से बाहर खदेड़ना चाहते हैं। Absolutely, and thank you so much to all the viewers for having called and asked some very pertinent questions. Thank you so much to the social media users, social media accounts buzzing, and that's it then in this edition of Doctor Speak. We'll see you again at 2 p.m. tomorrow. Until then, goodbye. Namaskar. दुनिया में कई काम बड़े मुश्किल है, जैसे कि चंद मिनटों में चांद पर पहुंचना, टूथपेस्ट में पेस्ट को वापस डालना, और भैया एक काम है जो है बेहद आसान। अरे भाई वही आधार कार्ड में अपना एड्रेस अपडेट करना। इसके लिए बस आपको UIDAI की वेबसाइट पे जाना है, अपना आधार नंबर डालकर OTP जनरेट करना है, फिर फॉर्म में OTP डालकर अपडेट एड्रेस कर कंफर्म करना है, और लो हो गया आपका आधार में एड्रेस अपडेट। आप भी आधार अपना लो, फायदे में रहोगे। Celluloid outbreaks tonight at 8:30 p.m. only on DD India.
डीडी फ्री डिश, भारत की एकमात्र फ्री डीटीएच सर्विस। अब देखिए आपके अपने पसंदीदा चैनल डीडी न्यूज, चैनल नंबर 1। देश में अब तक कोरोना संक्रमण के 25,000 सक्रिय मामले दर्ज, 8,888 मरीज पूरी तरह स्वस्थ होकर लौटे घरों को, जबकि 1,147 लोगों के कोरोना संक्रमण से हो चुकी है मौत। कुल संक्रमण की संख्या है 34,752। गाजीपुर के किसानों की फसलों का हो रहा है विदेशों में निर्यात। वाराणसी हवाई अड्डे से एयर कार्गो से 20 क्विंटल सब्जियां ब्रिटेन को भेजी गई। कोरोना संक्रमण के इस दौर में जहां रोजगार के अवसर कम होते जा रहे हैं, वहीं मनरेगा ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरों को स्थानीय स्तर पर रोजगार मुहैया करा रहा है। और पिछले एक सप्ताह में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से प्रदेश के कई क्षेत्रों में जहां मड़ाई का कार्य प्रभावित हुआ है, वहीं जायद की फसल को पहुंचा है काफी नुकसान। किसान हुआ है बेहाल। नमस्कार, मैं हूं विजय श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित आज 8,888 मरीज पूरी तरह से स्वस्थ